This conference will now be recorded. K8s का मतलब है Kubernetes. K-U-B-E-R, Kuber N-E-T-S, nets. तो क्या हो गया ये? This is a K8s. 8 डिजिट है? Yes or no? K के आगे 8 डिजिट है, तो that is meaning of Kubernetes. K8s भी बोला जाता है. So K8s is a very powerful tools of DevOps. It is very DevOps because provide high availability, security, failure, or fault tolerance, etc. Okay, because it provides a high availability, securities, fault tolerance, etc. So what is the meaning of like you know कि हमने अपना previous जो tool finish करा था वो था Docker, ठीक है ना? So यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर हम जो use करते हैं ना, that because the Kubernetes use a cluster. Kubernetes use a concept of a cluster. In a Kubernetes, deploy cluster, and inside the cluster deploy node, and inside the node deploy pod, and inside pod deploy containers, or inside the container deploy applications. So what is the meaning? In a Kubernetes we have created one cluster. Inside this cluster I'm create a node, and inside the node we create a pod, or inside the pod you create a container. Create a container, or inside the container you deploy a application. So this is the entire concept. तो अब ये सारी चीजें हमें समझनी पड़ेंगी. So जब हमने स्टार्ट करा था तो सबसे पहले हमने एक वेबसाइट डिप्लॉय कराई थी ओनली किस पर? नोड पे, सर्वर पे. उसके बाद वी हैव डिप्लॉय वेबसाइट इन अ कंटेनर. नाउ अब pod and pod के अंदर कंटेनर. So when you create a cluster, like when you create a cluster, the cluster, inside the cluster you create a node, and inside the cluster node is this node divided in a two parameters. One parameter is called a master node and other is a worker node. So suppose this is my master node, and this is my worker node. Worker node 1, or either choice is where you can use a multiple worker node or multiple master within a
cluster. Worker node 2. So guys, when admin create clusters, inside the cluster creates multiple nodes, and these nodes divide in two parts. Master and worker. With the help of master node, manage worker node. So guys, वर्कर नोड पे आप काम नहीं कर सकते हो. अगर आपको वर्कर नोड पे कोई भी चीज, व्हेन यू डिप्लॉय एनीथिंग इन अ वर्कर नोड, सो आपको मास्टर नोड के थ्रू ही डिप्लॉय करना पड़ेगा. The same with the help of master node, manage worker node and deploy resource such as pod. Got it? The pod is a collection of container. Node, machine को node बोलते हैं. Cluster is a collection of node. So guys, with the help of master node, manage a worker node and deploy a resource such as pod, and pod is a collection of a container. Like when you create a cluster, cluster का मतलब है group. मैं एक ऐसा ग्रुप बनाना चाहता हूं जिसके अंदर मैं डिफाइन करूंगा हाउ मेनी मास्टर इज अवेलेबल और हाउ मेनी वर्कर नोड इज अवेलेबल. दैट मीन्स कि आप एक ऐसी टीम बना रहे हो जिसके अंदर आप डिसाइड करोगे कि हाउ मेनी एम्प्लॉयज और हाउ मेनी टीएल. गॉट इट? कि टीम लीडर कितने हैं, या आप ऐसी टीम बना रहे हो कि आपने दो टीम, आप एक टीम बना रहे हो जिसमें आपने बोला एक मास्टर हो गया, कैप्टन हो गया, बाकी उसके मेंबर हो गए. तो जो मेंबर्स हैं वो किसका रूल फॉलो करेंगे? कैप्टन का. सेम एज के मैंने क्लस्टर बनाया, दिस क्लस्टर नेम इज लाइक INDIA, इंडिया. ओके, इनसाइड द इंडिया मैंने क्या करा? 3 नोड्स यानी कि 3 सर्वर्स लगाए. दिस इज अ सर्वर 1, दिस इज सर्वर 2 एंड दिस इज सर्वर 3. बट हम यहाँ पे इनको सर्वर कॉल नहीं करेंगे. यहाँ पर हम इसको क्या कॉल करेंगे? इनसाइड द क्लस्टर नोड, and this node is called a master node and worker node. The always with the help of master node we control and manage the worker node. यानी कि worker node पे अगर हमें कोई भी काम करना है तो हम worker node पे login होके काम नहीं करते हैं. with the help of किसके थ्रू करते हैं? master node ही करते हैं. अब what is the benefit of this infrastructure? So मैंने पहले बताया था, it is a very powerful tool of DevOps because they provide a high availability, security and fault tolerance. That means इसका benefit क्या है? When any container is goes down, any pod is goes down, so automatically वो एक नया pod create कर देगा. Any server is goes down, जिस पे container बना रखे, अगर आपका वो node भी down जाता है तो भी उसकी जगह क्या करेगा? Immediately नया node अपने आप ही deploy कर देगा. This is a high availability because it's using a scaling features. तो बैकएंड में ये क्या है? ऑटो स्केलिंग फीचर्स भी यूज करता है कि फेलियर को सपोर्ट करता है, जो कि हमारा डॉकर सपोर्ट नहीं करता था. अगर डॉकर हमने जिस सिस्टम पे डिप्लॉय करा है, अगर वही सिस्टम हमारा क्रैश हो गया तो वो सर्वर और सिस्टम ऑटोमेटिकली नहीं बनेगा. गॉट इट? या हम उस पर मैनुअली स्केलिंग लगाए. बट यहाँ पे क्लस्टर का कॉन्सेप्ट ये कि अगर इंटायर सारे के सारे सिस्टम भी आपके एक ही गो में चले गए तो उसकी जगह वो विद इन अ मिनट सारा इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा से डिप्लॉय कर देगा विद इन अ मिनट. हाँ,
क्लस्टर के अंदर जो भी चीजें हैं, either you create a 2 master or 5 master or 10 master or 10 worker nodes or 1000 worker nodes, सारी चीजें रिकवर हो जाएंगी. Got it the concept guys of high availability? Yes, sir. So this is a concept of a Kubernetes. So the Kubernetes is a tool of Google. तो इस Kubernetes को जो डेवलप करा है वो किसने करा है? गूगल ने डेवलप करा है. नाउ वन मोर थिंग इज द क्लस्टर कंट्रोल और मैनेज एंड डिप्लॉय cluster deploy by controller node. After deploy, cluster access master node in controller node and deploy pod in worker node. क्या बात है कि क्लस्टर बनेगा कैसे? गाइस क्लस्टर बनाने के लिए सबसे पहले यू डिप्लॉय अ वन कंट्रोलर नोड. आपको एक कंट्रोलर नोड बनाना पड़ेगा. विद द हेल्प ऑफ दिस कंट्रोलर नोड यू कैन डिप्लॉय अ क्लस्टर. कंट्रोलर नोड की हेल्प से आप क्या करोगे? डिप्लॉय अ क्लस्टर. और क्लस्टर के अंदर आप अपनी इंफॉर्मेशन दोगे कि आप हाउ मेनी मास्टर्स, कितने मास्टर्स बनाना चाहते हैं, उनकी क्या कॉन्फ़िगरेशन रखना चाहते हैं, नंबर ऑफ वर्कर नोड्स आप कितने बनाना चाहते हैं. देन योर क्लस्टर इज डिप्लॉय, देन यू कैन एक्सेस द मास्टर नोड इन दिस सिस्टम. आप क्या करोगे? कंट्रोलर सिस्टम पे मास्टर नोड को क्या करोगे? एक्सेस करोगे एंड देन यू कैन डिप्लॉय अ पॉड. और उसके बाद आप क्या करोगे? पॉड डिप्लॉय करोगे. क्या यू कैन डिप्लॉय पॉड इन अ वर्कर नोड 1 और आइदर यू डिप्लॉय अ पॉड इन अ वर्कर नोड 2. Got it the scenario? Everyone, Asfaq, Gaurav, Pankaj, Rakesh, Tarun. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. But now guys, when you create a cluster or this controller nodes, before controller node you create a one you provide a सर्विस कि आपको कंट्रोलर नोड को भी क्या देनी पड़ेगी? कुछ सर्विसेज एलोकेट करनी पड़ेंगी. वो सर्विसेज क्या है कि कंट्रोलर नोड क्या है कि क्लस्टर कहीं ना कहीं किसी लोकेशन पे तो बनेगा क्लाउड के अंदर. सो नाउ कि आई एम आस्किंग कि आई एम जस्ट गिव द स्टोरेज परमिशंस. मैं एक स्टोरेज बनाऊंगा और उस स्टोरेज का फुल एक्सेस दूंगा किसको? कंट्रोलर नोड को. कि मेरा जो भी क्लस्टर इंफॉर्मेशन है वो मेरे कहां पे जाके सेव हो? S3 के अंदर सेव हो. तो नाउ आई एम क्रिएट अ S3 बकेट. सेकंड कि पॉड्स हैं और क्लस्टर्स के सिस्टम्स भी तो आपस में कम्युनिकेट करेंगे. और कम्युनिकेशन किसके थ्रू होता है? वीपीसी के थ्रू. तो मैं क्या करूंगा? कंट्रोलर नोड को वीपीसी का भी एक्सेस दूंगा. आइदर फेलियर कि मेरा जो फेलियर होता है लाइक ऑटो स्केलिंग और लोड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लोड बैलेंसर ऑटो स्केलिंग के भी राइट्स देने पड़ेंगे. सो आल्सो आई एम प्रोवाइड ऑटो स्केलिंग एंड लोड बैलेंसर राइट्स थ्रू दिस क्लस्टर. ऑटो स्केलिंग एंड लोड बैलेंसर एज वेल एज कि अगर आप हो सकते हैं कोई वेबसाइट है नेम से एक्सेस करना चाहते हो, डोमेन नेम से, सो ये नीड आल्सो नीड अ रूट 53 राइट्स. तो मेरे को यहाँ पर रूट 53 के राइट्स भी इसको एलोकेट करने पड़ेंगे. एंड नाउ गाइस हाउ टू ऐड. सो वी क्रिएट अ रोल. अगर मेरे को सारी चीज करनी है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? आई एम क्रिएट अ रोल इन अ क्लाउड. create a role in AWS service, AWS, attach policies, policy with role such as
S3 full access, comma VPC full access, auto scaling, load balancer, route 53 full access. यानी कि जो भी चीज है मैं उसका एक रोल बनाऊंगा और उस रोल के साथ पर्टिकुलर इन पॉलिसीज को क्या करूंगा, अटैच करूंगा. किसके साथ? रोल के साथ. एंड देन अटैच रोल विद कंट्रोलर नोड. तो जैसे मैं कंट्रोलर नोड के साथ अटैच कराऊंगा तो यहाँ पे अगर कोई भी यूजर काम कर रहा है, लाइक यूजर 1 इज अवेलेबल, so the user 1 have access, it's manage S3 VPC auto scaling load balancer route 53 with the controller node. वो कंट्रोलर नोड पे बैठ के इन सारी चीजों को मैनेज कर सकता है. अगर मैं कंट्रोलर नोड से रोल रिमूव कर दूंगा तो वो सारी परमिशन उसके आप एंड से क्या हो जाएंगी, रिमूव्ड हो जाएंगी. तो मैंने बताया कि क्लाउड की कौन कौन सी सर्विसेज को वो यूज कर सके. तो मैंने एक रोल बनाया और उस रोल्स के अंदर जाके हम ऐड दिस सर्विसेज एंड अटैच रोल विद सर्वर. आप जिस भी सर्वर के साथ वो रोल अटैच करेंगे उस सर्वर पे बैठ के आप ये सारी सर्विसेज को कंट्रोल कर सकते हैं. देयर इज नो एनी एक्सेस बाय डिफॉल्ट. बाय डिफॉल्ट किसी भी EC2 रिसोर्स को किसी अदर सर्विस को एक्सेस करने के राइट्स नहीं होते हैं. अगर आप चाहते हो कि आप कोई लाइक EC2 से आप लाइक स्टोरेज की सर्विस एक्सेस करना चाहते हो या नेटवर्क की सर्विस मैनेज करना चाहते हो तो आपको रोल्स डिफाइन करने पड़ेंगे. यानी कि पहले परमिशंस लेनी पड़ेगी. Got it the point guys? So now कि यहाँ पर जो मैं यूज करने वाला हूँ, I'm using a default VPC. So हमारा एक default VPC बना रहता है, so I'm using a default VPC. I'm create a one storage. So guys, I'm create a storage. I'm just log in with portal and search in S3. Or inside that 3, I'm just create a storage account, create bucket, give the storage account name like my CLUSTER cluster info. So I'm just create a storage with the name of my cluster info. In which location I'm deploying a Mumbai location. I'm just give the public access to this storage account. And now create. So guys, I'm create a one storage with the name of my cluster info. Now कि आप अपना जो cluster बनाना चाहते हो किस नेम से बनाना चाहते हो, so you will create a same name is domain name. जिस नाम से आपका domain name, you can buy either a GoDaddy. अगर आप GoDaddy से buy नहीं करना चाहते तो you can use a private. तो private का मतलब है कि वो within a organization ही access होगा. और अगर आप buy करते हैं public, so you can access in a worldwide. So now I'm using a private, so I'm just go to route 53 and inside the route 53 I'm create a one hosted zone that is called a DNS. ये मेरा DNS है. So already एक DNS है. I'm just create a new one for you. Create hosted zone and now I'm just create a like a my CLUSTER cluster.com. Suppose करो this is my cluster name. So my cluster.com and it is a private hosted zone and I'm select in which location, in a Mumbai location. And now the select a VPC, I'm select a default VPC and create hosted zone. Now I'm create a roles and provide the permissions. अब मैं एक role बनाऊंगा and roles को मैं क्या करूंगा, policies attach करूंगा. So guys, टू वे हैं, या तो आप अपनी ही पॉलिसी बना के वो अटैच कर लो या जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज है पहले से ही आप उनको अटैच कर लो. सो नाउ कि यहाँ पर जो मेरी आई एम जस्ट गो टू IAM आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट. दिस इज अ कंट्रोल पैनल ऑफ क्लाउड. ये आपका कंट्रोल पैनल. लाइक अगर आप किसी सिंगल यूजर को एक सर्विस ही देना चाहते हो, लाइक मैं चाहता हूँ S3 स्टोरेज, तो आपको S3 स्टोरेज के अलावा मैं सारी सर्विसेज डिसेबल कर सकता हूँ आपके लिए. आप S3 के अलावा EC2 में कोई वर्चुअल मशीन की पेयर कुछ नहीं बना सकते हो. तो डिपेंड्स कि अगर कोई यूजर मेरी कंपनी के अंदर आ रहा है और मुझे कोई प्रोफाइल उसके लिए क्रिएट करनी है, तो वो प्रोफाइल मैं किस तरीके से क्रिएट करूंगा. नाउ गाइस कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे
रोल बनाया हुआ है एक, सो दिस इज मल्टी रोल्स लाइक मैंने यहाँ पे अभी मल्टीपल ICCP क्लस्टर K8 रोल मैंने बनाया हुआ है, और इन दिस क्लस्टर आई एम प्रोवाइडेड दिस परमिशन. सो नाउ हाउ टू क्रिएट, कि अगर आपको भी क्रिएट करनी है, सो इट सिंपली आई एम जस्ट कॉपी द नेम, आप फोटो खींच लीजिए, दिस इज द सेम नेम, अदरवाइज आप फैच नहीं कर पाओगे नेम को, तो ये नाम आपको सेम ही डालने पड़ेंगे तभी आपका परमिशन. तो नाउ हाउ टू क्रिएट रोल, यू कैन जस्ट क्लिक, go to IAM and click on roles and create roles and AWS and EC2, क्योंकि मैं roles को अटैच करना चाहता हूँ सर्वर के साथ, तो I'm just create role for EC2. Next, and attach a permission. So now first select a permission is EC2 load balancer, and now enter. So I'm select a EC2 load balancer service. Second, I'm just select IAM, so no need for IAM. Second, S3 full access. Storage की permission मुझे देनी है. Now I'm select and search. What happened? Amazon S3 full access. So I'm select Amazon S3 full access permission. After that, I'm just add VPC full access. Network permission also is required. VPC full access is coming. After that is look like a Route 53 service is also required. I'm at the Route 53 policies. So I think so guys, I'm select all VPC, Route 53, system admin भी हम दे ही देते हैं. And elastic load balancer दे दिया ना, कोई नहीं वो ले लेता, और EC2 दे दिया तो ऑटो स्केलिंग एड ऑन ही हो जाती है EC2 के अंदर. लाइक अगर आप ऑटो स्केलिंग देना चाहते हैं तो सर्च AUTO ऑटो SCA या Amazon नो प्रॉब्लम. अगर आपने EC2 दे देता है, इनसाइड EC2 ऑटो स्केलिंग आ जाती है. तो नाउ आई एम जस्ट क्रिएटेड दिस रोल्स. तो ये रोल्स मैंने यहाँ पे करा दिए. नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट, गिव द रोल नेम लाइक माई CLUSTER cluster IAM ROLE role. Got it? I am give the name and ये permissions मैंने assign कर दिए इसको. Now the create a roles. IAM. और गाइस देखिए यहाँ पे ये मेरा my IAM roles के नाम से यहाँ पर ये मेरा roles आ चुका होगा, my cluster IAM roles के नाम से. Got it? Now the third options कि अभी मैंने क्या करा, I'm just create these things and deploy create a role. Now I'm just create a one node. मैं अब एक नोड बनाऊंगा. This node is called a controller node. और इस कंट्रोलर नोड के साथ मैं अटैच करूंगा इस रोल को. उससे क्या होगा कि मेरे इस रोल इस सिस्टम को ये सारी की सारी सर्विसेज का एक्सेस मिल जाएगा. सो नाउ आई एम जस्ट गो टू द पोर्टल and go to EC2 section and launch instance Amazon EC2 T2 micro एंड नेक्स्ट आप चाहें तो रोल्स यहाँ से भी अटैच कर सकते हैं. ये देखिए यहाँ पे आ गया माई क्लस्टर IAM रोल्स, बट मैं बता रहा हूँ कि एग्जिस्टिंग मशीन के साथ आप कैसे ऐड और रिमूव कर सकते हो रोल्स. सो मैं रोल्स बाद में अटैच करूंगा. नेक्स्ट आई एम जस्ट गिव द स्टोरेज. नेक्स्ट क्लिक, controller nodes. Now next, review and launch.
So guys, I'm create a one controller node. Now next point, अब आपको आता है कि अब हमें अपना क्लस्टर क्रिएट करना है, बट क्लस्टर क्रिएट करने से पहले हमें ये सारी इंफॉर्मेशन कंट्रोलर नोड को अपडेट करनी पड़ेगी, यानी कि उसके अंदर एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा एंड कंट्रोलर नोड को बताना पड़ेगा कि मेरे क्लस्टर का नाम क्या है, मेरे स्टोरेज का नाम क्या है, मेरा डोमेन का नाम क्या है. So now I'm just open this file and inside this file like guys सिंपली लाइक कि आपकी जो फाइल है लाइक हमने जो बकेट बनाया है वो बकेट हमने किस नाम से बनाई है, माई CL क्लस्टर इन्फो. यस और नो गाइस, इसी नाम से है माई स्टोरेज. तो चेक कर लेते हैं गाइस, नो प्रॉब्लम. तो सेम ही नेम होना चाहिए जिस नाम से आपने बनाया, ये रिमेंबर. So my cluster info, so I'm using a same name. Is it in a file? My cluster info. Then also I'm update same name in this location. This is my variable. My CLUSTER cluster info. Then domain किस नाम से है आपका, यानी कि आप क्लस्टर किस नाम से बनाना चाहते हो. तो क्लस्टर किस नाम से दिया था मैंने, my cluster info.in.com था. I'm just go to the root 53. So I'm just go to the root 53 and check the hosted zone कि मेरा जो hosted zone है वो किस नाम से है. So now the hosted zone is name is mycluster.com. So और records 2 है, so the name is mycluster. तो गाइस ये मैं अभी एडिट कर रहा हूं, बाद में मैं कॉपी एंड पेस्ट करूंगा कमांड, ठीक है. सो नाउ व्हेन यू क्रिएट अ क्लस्टर, तो क्लस्टर क्रिएट करना है तो नेम क्या रखा है हमने क्लस्टर का, सेम ही नेम रहेगा जो आपका डोमेन नेम है, माई CLUSTER cluster.com. नाउ इन विच जोन, AP साउथ 1A के अंदर मैं बनाना चाहता हूं. DNS आई एम यूजिंग अ प्राइवेट DNS. नंबर ऑफ नोड्स, आप कितने नोड्स बनाना चाहते हो, 1 और 2 और 3. आई एम जस्ट क्रिएटिंग, आई एम जस्ट डिप्लॉइंग 2 नोड्स. Remember guys, the node is not deployed in T2 micro. Minimum 2 GB, 2 CPUs और 4 GB RAM is required. So पेडेबल सर्विस है, यहाँ पर आपका बिल बनेगा जब आप क्लस्टर डिप्लॉय करेंगे. और डिप्लॉय करना उसके बाद पता लग जाएगा. Now I'm using a T2.medium. तो आई एम यूजिंग T2 मीडियम. दैट मीन्स कि मेरे जो दो नोड्स बनेंगे उनका हार्डवेयर क्या रहेगा, T2 मीडियम. एंड मास्टर, सो मास्टर के लिए भी मैं चाहता हूं कि T2 मीडियम ही यूज हो, और इधर आप इससे अब ले सकते हो. एंड विच क्लाउड, AWS क्लाउड पे मैं डिप्लॉय करना चाहता हूं. तो T2 मीडियम का मतलब है गाइस कि व्हेन यू क्लिक ऑन अ लॉन्च इंस्टेंस एंड नाउ नेक्स्ट, तो देखिए यहाँ पर आपकी लिस्ट आती है इंस्टेंस टैब, और यहाँ पर मैंने सिलेक्ट करा है T2 मीडियम. दैट्स बीन 2 CPU एंड 4 GB RAM. यानी कि टोटल क्लस्टर के अंदर कितने नोड्स बनेंगे, 3, जिसमें से एक बनेगा मास्टर और 2 बनेंगे वर्कर नोड. गॉट इट द पॉइंट गाइस. नाउ आई एम जस्ट लॉग इन विद कंट्रोलर नोड एंड डिप्लॉय अ क्लस्टर. बट रिमेंबर गाइस कि व्हेन यू डिप्लॉय अ क्लस्टर, क्लस्टर डिप्लॉय करने के लिए आपके इस वर्कर नोड पर 2 और सर्विस इंस्टॉल्ड होनी चाहिए. वर्कर नोड पर 2 सर्विसेज और होनी चाहिए कि अगर आप क्लस्टर बनाना चाहते हैं तो आपके इस पर कोप्स की सर्विस होनी चाहिए, कोप्स इंस्टॉल होना चाहिए. और अगर आप पॉड्स वगैरह या अदर कुछ करना चाहते हैं तो kubectl, ये 2 सर्विसेज और आपके इंस्टॉल होनी चाहिए. दिस इज अ कुबरनेट सर्विसेज. बाकी सारी चीजें क्या है उसकी है, बट ये 2 है कि अगर हम क्लस्टर क्रिएट करेंगे तो क्लस्टर क्रिएट करने के लिए कोप्स इंस्टॉल होना जरूरी है आपके कंट्रोलर नोड पर.
और क्लस्टर क्रिएट होने के बाद अगर आप कंटेनर या पॉड्स वगैरह कुछ भी चीज बनाते हो, सर्विसेज व्हाटएवर, तो उसके लिए kubectl. So with the help of kubectl you deploy a resource, or with the help of Kops you can deploy a cluster. तो क्लस्टर से रिलेटेड कुछ भी काम करना है तो आपको कमांड यूज करनी पड़ेगी कोप्स, और अगर आपको कोई रिसोर्स बनानी है तो यू कैन यूज अ kubectl. जैसे हम अगर ubuntu पे कर रहे हैं तो apt get, और अगर EC2 पे कर रहे हैं तो yum. So now अभी हम क्या बना रहे हैं, क्लस्टर. रिसोर्स तो बाद में बनेंगे ना, तो क्लस्टर के लिए the कोप्स is required. So now I'm just login with the EC2 instance. I'm just go to here and copy the public IP. sudo su hyphen yum update hyphen y, update the repository. और काफी इजी है क्लस्टर बनाना, सिर्फ आपके पास अगर वो फाइल के अंदर सारी कमांड्स मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, तो काफी इजी तरीके से आप क्लस्टर बना सकते हो, और क्लस्टर से पहले ये सारा काम करना है. बट यू कैन सी कि मैं आपको अगर फाइल दिखाता हूँ गाइस, तो आप ध्यान से फाइल देखें. तो देखिए सबसे पहले हमने एक वर्चुअल कंट्रोलर नोड बनाया, देन हमने क्या करा, S3 स्टोरेज बनाया, EC2 इंस्टेंस बनाया, VPC रूट 53 ऑटो स्केलिंग, ये सारे के सारे मिला के हमने एक IAM रोल, सो क्रिएट है एंड अटैच IAM रोल विद EC2 इंस्टेंस. देन उसके बाद दिस इज अ कोप्स इंस्टॉल करना है तो ये कमांड्स आपको कॉपी पेस्ट करनी है, kubectl करना है तो ये कमांड्स करनी है. नाउ बकेट्स हम ऑलरेडी बकेट बना चुके हैं, और इधर आप कमांड लाइन से भी बना सकते थे, ठीक है. तो हम ऑलरेडी बकेट्स बना चुके हैं. नाउ आप अपडेट द वेरिएबल. तो अपडेट वेरिएबल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रूट 53 भी हम कर चुके हैं, क्रिएट अ प्राइवेट होस्टेड जॉन इन AWS रूट 53. तो ICCP सॉरी mycluster.com के नाम से मैं रूट 53 होस्टेड जॉन भी बना चुका हूं. नाउ आई एम अपडेट द वेरिएबल, आई एम जस्ट कॉपी and come to this machine and then paste this command, enter I for insert, और insert आने के बाद मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कमांड्स को एडिट कर दिया. तो नाउ जस्ट कॉपी दिस टू कमांड्स. तो ऑलरेडी मैंने पहले एडिट कर दिया, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, कॉपी एंड पेस्ट. तो माई क्लस्टर इज माई क्लस्टर नेम और दिस इज माई स्टोरेज, यानी कि मेरा जो क्लस्टर बनेगा वो कहां पे सेव होगा, स्टोरेज के अंदर सेव होगा. दैट मीन द क्लस्टर इंफॉर्मेशन सेव इन इनसाइड द S3 स्टोरेज, माई क्लस्टर इन्फो, escape colon WQ. आफ्टर दैट आई एम जस्ट रन द कमांड. वेरिएबल्स को अपडेट करने के लिए आई एम यूजिंग दिस कमांड. After that, I'm just generate the key. The key is the provide the communication between cluster nodes. तो ये की आपका जो वर्क करेगी, क्लस्टर्स को कम्युनिकेट कराने के लिए करेगी, और इधर कंट्रोलर नोड और क्लस्टर को कम्युनिकेट कराने के लिए की क्या करेगी, वर्क करेगी. सो आई एम जनरेट अ की. आफ्टर दैट आई एम जस्ट डिप्लॉय अ क्लस्टर, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, क्लस्टर क्रिएट करूंगा. तो कमांड कोप्स create cluster hyphen hyphen name mycluster.com in which zone, AP South 1A, यानी कि मुंबई जोन के डेटा सेंटर A में डिप्लॉय कर रहा हूं. hyphen hyphen DNS private, number of nodes 2 nodes, size of nodes 2 to T2 medium, master node 1 ही डिप्लॉय करना चाहता हूं inside the cluster. how many what is the size of T2 medium and which cloud, AWS cloud. और इधर अजूरे पे करना चाहते हैं तो अजूरे के हिसाब से आप ये इंफॉर्मेशन ऐड ऑन करोगे. एंड नाउ राइट क्लिक एंड पेस्ट. नाउ इंटर. तो द कोप्स, या तो देखिए गाइस, व्हाई इट गिव द एरर, आई एम नॉट इंस्टॉल द कोप्स. सो CLEAR क्लियर, इसीलिए मैंने बोला था कि आपको कोप्स इंस्टॉल होना जरूरी है. तो नाउ आई एम इंस्टॉल अ कोप्स and kubectl. I'm just go to this file and first of all I'm install a kops. I'm just copy these 3 commands
and paste. Then kubectl, I'm just copy these 3 commands. हाँ, मैं आपको दे दूंगा को हाउ टू इंस्टॉल कोप्स और कुबरनेट मैं अभी दिखा दूंगा कमांड्स में कहां से लाया हूं. तो लाइक व्हेन यू गो इन अ गूगल और गूगल पे जाओगे आप तो आपको यहाँ पे लिखना है इंस्टॉल कोप्स. कोप्स इन EC2. तो नॉर्मल है इंस्टॉल कुबरनेट विद कोप्स. तो यहाँ पर आप कहेंगे और ये आपकी कमांड्स है. लिनक्स पे आपने क्लिक करा तो ये आपकी कमांड है, यही कमांड्स है वो. तो यहाँ से मैंने किया, यहाँ से लेके मैंने टेक्स्ट फाइल में कॉपी करके लिख दिया जिससे आपको सीक्वेंस में पता लग जाए. अगर kubectl करना है तो सेम इंस्टॉल kubectl. तो kubectl इंस्टॉल करना है तो यहाँ पर भी है किस पर करना है, लिनक्स पे. यू कैन जस्ट क्लिक ऑन लिनक्स और यहाँ पर ये kubectl की कमांड. तो मैंने क्या करा, यहाँ से कॉपी करके वहां पर सेव कर दिए. गॉट इट एवरीवन, जिससे आपको इजी वे में मिल जाए. तो नाउ द कॉपी, आपकी मर्जी है, आप जहां मर्जी से करिए. एंड नाउ द पेस्ट इन. तो गाइस ये दोनों सर्विसेज मैंने अपडेट कर दिए. नाउ क्लियर. और अब मैं अगर अपनी कोप्स वाली कमांड चलाता हूँ, क्रिएट क्लस्टर वाली, कोप्स क्रिएट क्लस्टर, नाउ इंटर. तो इट्स गिव मी द एरर कोप्स create cluster. It give me the which error is error cluster configuration mycluster.com. the error mycluster info / mycluster.com is config enable to list. Okay, so I'm just go to and edit my base RC file का error है guys ये. so वहां पे जाके हमें चेक करना है mycluster.com or mycluster info. Is it same name? So S3 storage name info. So mycluster cluster name तो सही है ना guys? And go to root 53. mycluster.com. So the name is नहीं, वो वाला कंट्रोलर नोड चल जाएगा. तो देख लेते हैं. कोप्स क्रिएट क्लस्टर T2 medium, T2 medium, मीडियम है दोनों तरफ. किसमें? वो तो कंट्रोलर नोड है ना. तो कंट्रोलर नोड चलेगा माइक्रो पे. कंट्रोलर नोड माइक्रो पे चलेगा. एरर क्या दे रहा है देख लेते हैं. ये हमें दे रहा है reading cluster configuration mycluster.com. the error reading S3 mycluster info / mycluster.com config enable to list a case by access key is not fine. की जन तो मैंने करा था. Now I'm just pasted this command again. क्या पूछा है यार ये? http title not found
not found. सर हमने जोन सेम जोन का इशू था नहीं, इसमें जोन अलग अलग। जोन अलग क्या है यार, सेम ही जोन में तो है। बकेट मैंने मुंबई रीजन में जो बनाई है जोन में नहीं है, मुंबई रीआर है ना, यहाँ तो ग्लोबल ही आएगा। ये आपका आईएएम और ये सब ग्लोबल ही है। एक काम करते हैं, अरे यार मैंने रोल अटैच नहीं करा अभी तक। गॉट इट गाइस, आई एम नॉट अटैच रोल, तो रोल नहीं करा इसलिए उसको एक्सेस नहीं मिल रहा है। किस चीज को? डीएनएस कोर इन सर्विसेज को एक्सेस। तो हाउ टू अटैच रोल? आई एम गो टू EC2 actions and security and modify IAM roles and attach my cluster IAM role and save. Clear? So now I'm attach this role and then I'm run this command again. Now it's working. तो guys concept पता लगा रोल का कितना बेनिफिट है? Is it clear guys? तो अभी मेरा क्लस्टर क्रिएट नहीं हुआ है, उसने एक फाइल बना दी है क्लस्टर की। अब मुझे अगर क्लस्टर डिप्लॉय करना है तो आई एम टाइप दिस कमांड कोप अपडेट क्लस्टर हाइफन हाइफन नेम ऑफ क्लस्टर माई क्लस्टर .com हाइफन हाइफन यस एडमिन, राइट क्लिक एंड पेस्ट एंड नाउ इंटर। अब आपका क्लस्टर क्या होगा? डिप्लॉय होगा विद इन 10 मिनट्स। हाँ, और इट ऑटोमेटिकली क्रिएट मास्टर नोड्स, वर्कर नोड्स, ऑटो स्केलिंग, एवरीथिंग, सारी चीजें क्या करेगा? ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगा। VPC भी ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगा क्लस्टर के लिए। हाँ, वहां पे जाके आप देख सकते हो, ये एरर दे रहा है कुछ, एक्सिनोड प्रोग्रेस फॉर स्लीप बिफोर रिट्राई फॉर, ये किस चीज का एरर दे रहा है? IAM, ओहो IAM रोल्स नोड माई क्लस्टर, फिर से नोड का एरर दे रहा है। ये मैं क्या करता हूँ, मैंने एक IAM वाली सर्विस अटैच नहीं करी थी, मैं क्या करता हूँ, आई एम गो टू सिलेक्ट अ कंट्रोलर नोड एंड सिक्योरिटी मॉडिफाई, और गाइस आई एम अटैच अनदर रोल। ठीक है, पहले वाला जो था, तो क्योंकि अगर आपका आफ्टर दैट गो टू दिस मशीन एंड नाउ इट्स एग्जीक्यूट। तो देखिए यहाँ पे IAM का ये एरर दे रहा था, IAM रोल। अगेन ये फिर कोई एरर दे रहा है, create IAM role, access denied user, IAM roles पहले अटैच, अच्छा मैंने IAM role रिमूव करके दोबारा से अटैच करा है ना, इसलिए वो एरर दे रहा है, इट्स अपडेट और नॉट, यस अटैच्ड। नॉट प्रोग्रेस, सो आई एम जस्ट कंट्रोल जेट, मैंने टास्क को रोका, और टास्क को रोकने के बाद गाइस मैंने यहाँ पे क्या करा, सबसे पहले मैंने दोबारा से कमांड चलाई, तो ऑलरेडी एग्जिट्स है, ये कमांड मेरी ऑलरेडी एग्जिट्स है। After that I'm just type a command admin and it start for run, no progress, media sleep before retry in task 2। क्या यार, या तो गाइस ये हो गया है, और ये आपका कितना टाइम लगेगा अभी डिप्लॉय होने में? 10 मिनट्स। सो प्लीज IAM रोल्स क्लस्टर डिप्लॉय करने से पहले अटैच कर लेना,
क्योंकि अगर आपका रोल अटैच नहीं होगा तो क्लस्टर की को परमिशन नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो आपका क्लस्टर क्रिएट हो रहा है, यू कैन सी फॉर इनसाइड द स्टोरेज अकाउंट, कि अगर आप S3 स्टोरेज पे जाते हैं और आपका जो S3 स्टोरेज है उसके अंदर माई क्लस्टर इन्फो के अंदर जाके वो क्लस्टर यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, दिस इज अ क्लस्टर, और इस क्लस्टर के अंदर जाके सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी आपकी क्लस्टर की। अगर आप इंस्टेंस ग्रुप बनाएंगे तो मास्टर और वर्कर नोड्स हैं, तो क्लिक करता हूं तो यू कैन सी द मास्टर और वर्कर नोड्स की इंफॉर्मेशन। तो द ऑल क्लस्टर यानी आपके इंटायर क्लस्टर की जो भी इंफॉर्मेशन है वो कहां पे स्टोर होगी? S3 स्टोरेज में, एज वेल एज S3 में जाके देखिए कि जितने भी मास्टर और क्लस्टर नोड्स बनेंगे उनके आईपीस को वो ऑटो ट्रांसलेट करेगा। सो लाइक आई एम जस्ट रिफ्रेश, अभी यहाँ पे क्या है, मास्टर क्लस्टर डॉट कॉम पे कितने रोल से 2 रिकॉर्ड से, नाउ आप देखिए 5 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 3A रिकॉर्ड बना दिया, दिस इज योर क्लस्टर आईपी। लाइक आई एम जस्ट रिफ्रेश इट, तो अभी मेरे क्लस्टर क्या हो रहे हैं? डिप्लॉय। मैंने EC2 इंस्टेंस अभी बनाए तो नहीं है ना, यू कैन सी कि ऑटोमेटिकली मेरे सर्वर्स यहाँ पे डिप्लॉय होने स्टार्ट हो गए हैं, मास्टर एंड नोड्स। गॉट इट गाइस? ऑटोमेटिकली मास्टर एंड सर्वर नोड्स आ गए मेरे। आप इनको डिलीट करते रहोगे अपने आप बनते रहेंगे, क्योंकि आपको क्लस्टर ही क्या करना पड़ेगा, डिलीट जब तक नहीं करोगे जब तक ये अपने आप ही बनते रहेंगे। तो या तो आप स्केलिंग फीचर्स करिए, तो स्केलिंग आपको यहाँ पे दिखेगी। तो बैकएंड में इसने क्या करा है, ऑटो स्केलिंग भी इनेबल करी है यहाँ पर। क्लियर एवरीवन? अभी तो सेटअप बना है, अब काम करेंगे इस पे। अब वही काम करेंगे जो हम कंटेनर डॉकर पे कर रहे थे। रेप्लिका, लाइक मैंने एक कंटेनर की 5 कॉपीज बना दी, दैट मीन्स की 5 कॉपीज वो मेंटेन ही करेगा। लाइक अगर आपकी एक कॉपी क्रैश होती है वो दोबारा से नहीं बना देगा। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब ही यही है, फेलियर। फेलियर है। स्केलिंग का मतलब है लोड इंक्रीज होगा ऑटोमेटिकली नया सर्वर डिप्लॉय कर देगा। लाइक मैंने वर्कर नोड की स्केलिंग करी हुई है इसमें, तो लाइक टू स्केलिंग फीचर्स में 2 ऐड हो रहा है, दैट मीन्स कि अगर आपका लोड बढ़ता है तो क्या करेगा, अपने आप ही क्लस्टर में और वर्कर नोड ऐड कर देगा, और उस वर्कर नोड पे ऑटोमेटिकली कंटेनर पॉड्स भी क्रिएट कर देगा। गुड, लाइक क्या था, इट इज द वन काइंड ऑफ ऑटोमेशन। कह रहे होंगे सर इसमें तो बहुत कुछ है, पूरा तो क्लाउड आ गया इसमें, स्टोरेज, EC2, VPC। कोई नहीं, कोई नहीं। तो नाउ गाइस उसके बाद आपको कमांड चलानी पड़ेगी, कोप्स वैलिडेट क्लस्टर, क्लस्टर को वैलिडेट करने के लिए, और ये आपको दिखा देगा कि हाउ मेनी मशीन्स आर वर्किंग, कि आपने जो क्लस्टर बनाया है उसके अंदर जितने भी सर्वर्स हैं रेडी और नॉट। तो जस्ट वेट कि यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं, तो अभी आई एम जस्ट क्लिक ऑन इंस्टेंसेस एंड नाउ कि T2 मीडियम है एंड 2x2 चेक इज पास, तो नाउ दिस गेट रेडी। तो मेरे क्लस्टर प्रॉपर्ली बन चुके हैं, नाउ आई एम वैलिडेट दिस क्लस्टर। एंड गाइस देखिए इसने यहाँ पे बता दिया कितने मास्टर नोड्स हैं आपके पास, 1 मास्टर एंड 2 नोड्स। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब आपको अगर कमांड्स के थ्रू देखना है तो सिंपल सा है, KUBECUBECTL get NODES nodes, so it's give you the cluster informations कि आपके पास टोटल कितने फिजिकल सर्वर्स या कितने आपने सर्वर्स क्लस्टर के अंदर यूज करे हुए हैं। What happened? Very slow response दे रहा है। KUBECUBECTL get pods, kubectl is not give me the response, that means कि मेरा अभी प्रॉपर क्लस्टर रेडी नहीं हुआ है। kubectl तो इंस्टॉल करा था ना,
kubectl version. So the client version of kubectl ने installed है, install है. So kubectl get pod, there is a no any pod. kubectl get nodes. It's a 3 nodes is ready to use. तो 3 सर्वर्स है मेरे. Now अगर आप देखते हैं kubectl get service. So when you create a cluster, it's create a one service. This service name is cluster IP, and this cluster IP service provide a communication between all nodes. So आपके जो nodes communicate कर रहे हैं ना, इस particular cluster IP के through node communicate कर रहे हैं. So that कि आप कभी भी when you create any cluster, it's create a one service, and this service called a cluster IP service. तो आपकी क्लस्टर आईपी सर्विस वर्क करती है आपके क्लस्टर्स नोड्स को कम्युनिकेट कराने के लिए. क्लियर एवरीवन हाउ टू डिप्लॉय क्लस्टर? देखिए मैं इसको छोटे में भी खत्म कर सकता था. एक आता है मिनी क्यूब, बट मिनी क्यूब ओनली डिजाइन फॉर टेस्टिंग, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, बट रियल टाइम में यही का यूज होता है. सो ये है कंप्यूट कुबरनेट सर्विस जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और एक होता है कंप्यूट लेस. तो कंप्यूट लेस के अंदर आपका आता है EKS AKS, दैट इज द कुबरनेट सर्वर्स मैनेज बाय द AWS एंड अजूरे. हमें कोई सर्वर बनाने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पर हमने प्रॉपर सर्वर बनाया, देन उसके ऊपर कुबरनेट डिप्लॉय करा है. सो हर कंपनी अपना खुद का सर्वर बनाती है, अदरवाइज वो स्पेसिफिक वेंडर के अकॉर्डिंग हो जाएगा. तो होप सो गाइस डिप्लॉय कर लेंगे. इनफ फॉर टुडे या कंटिन्यू? कैसे क्लस्टर रेडी होगा देन फिर आगे स्टार्ट होगा. ये सेटअप बना है हमारा. सो गाइस अगेन आई एम डिप्लॉय अ न्यू क्लस्टर इन टुमारो विद इन 15 मिनट्स. मैं अब आपको थ्योरेटिकल नहीं बताऊंगा, सारी चीज बनी हुई है. एक चीज ध्यान रखना कि अगर आप यहाँ पर सर्वर्स को डिलीट भी करेंगे तो भी वो नया क्लस्टर अपने आप बनाता रहेगा. तो आपको वैलिडेट कमांड्स भी यहाँ पर पड़ी हुई है, द कोप्स अपडेट क्लस्टर, इससे आपका क्लस्टर बनेगा. जब आप ये वाली कमांड टाइप कर दोगे तो यू कैन टाइप दिस कमांड, और आफ्टर दैट वैलिडेट, आफ्टर 10 मिनट्स के बाद आपको वैलिडेट करनी है कमांड. और अगर आपको उसके बाद आपको क्या अगर क्लस्टर डिलीट करना है, यू कैन टाइप दिस कमांड. और अदर सपोर्टेड जो फाइल्स हैं वो आपके ये रहा, kubectl get pod, kubectl get service. so these are the other commands जो हम वन बाय वन करेंगे. दिस इज अ YAML फाइल्स, जो हम YAML फाइल्स यूज करने वाले हैं. तो काफी सारी चीजें हैं. नाउ कि अगर मेरे को क्लस्टर डिलीट करना है, आई एम टाइप दिस कमांड एंड इट डिलीट द क्लस्टर. जो भी चीज क्लस्टर के थ्रू जहां भी बनाई है वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, डिलीट कर देगा. या आप मैनुअली जाके S3 स्टोरेज में से डिलीट करो, रूट 53 से डिलीट करो, ऑटो स्केलिंग डिलीट करो, मैनुअली जाके सारी जगह से डिलीट करनी पड़ेगी. तो बेटर है यू कैन राइट वन कमांड, और इसी कमांड के थ्रू आपके सारे के सारे जो भी सर्वर्स बने आप देखिए ये सब टर्मिनेट हो गए होंगे. ओनली कंट्रोलर नोड नहीं होगा, बिकॉज कंट्रोलर नोड इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्लस्टर, क्योंकि कंट्रोलर नोड पर बैठ के ही हम क्या कर रहे हैं, क्लस्टर को कंट्रोल कर रहे हैं. गॉट इट गाइस? So thank you, and I'm share with you this file.